हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी द स्टार्टर एक्टिविटी इज गिवन टू यू। Write qualifying word for each noun. Use hint given in the bracket. आपको qualifying word लिखना है हर एक noun का, और आपको hint भी आप use कर सकते हो जो आपको bracket में दी गई है। ठीक है, जैसे कि first one is dash elephant. आपको hint दिया है bracket में size। तो size कैसा है elephant का? बहुत मोटा सा है, heavy सा है, तो आप यहाँ पर लिखोगे heavy elephant या फिर fat elephant। ओके, फिर ऐसे ही आपको दूसरा फिगर दिया है जिसमें आपको दिया है डैश रोज। आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है अबाउट इट्स कलर। सो द कलर इज रेड, सो यू विल राइट रेड रोज। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव्स। Words that are used to describe more about nouns or pronoun are called adjectives. मतलब वो शब्द, वो words जो कि हम use करते हैं describe करने के लिए noun को और pronoun को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? adjectives बोलते हैं। For example, रणबीर is a humorous actor. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो actor के आगे क्या लगा है word? humorous. humorous क्या है? describing word. Okay, next one, कपिल cracks interesting jokes. ठीक है, jokes के आगे क्या है? interesting. तो interesting is a adjective, that is the describing word. Okay, now let's see the kinds of adjectives. Adjectives के यहाँ पर kinds बताए गए हैं। Adjectives are of the following kinds. So the first one is adjectives of quality, then adjectives of quantity, then adjectives of number, then demonstrative adjectives, then distributive adjectives, interrogative adjectives and possessive adjectives. Okay, तो चलिए जानते हैं हर एक adjective के बारे में। So the first one is adjectives of quality. Adjectives that tell us about the quality or kind of a person or thing are called adjectives of quality. मतलब कि वो adjective जो कि हमें बताता है quality या फिर किस तरीके का वो चीज़ है, thing है, ठीक है, person है, ठीक है, तो उसको हम adjective of quality बोलते हैं। For example, रजत is an intelligent boy. कैसा लड़का है वो? intelligent है। ठीक है, तो ये intelligent word जो है ये है adjective of quality. Okay? Now the next is adjectives of quantity. Adjectives that denote how much of a thing is meant are called adjectives of quantity. मतलब कि वो adjective जो denote कर रहा है कि कितना, how much of a thing, ठीक है, is meant or required, that is known as the adjective of quantity. ठीक है, जैसे कि for example, he drinks sufficient water. So कितना water? Sufficient water. Okay, that is the adjective of quantity. Now next is adjectives of number. Adjectives that show how many persons, places or things are meant are called adjectives of number. अब वो adjectives जो बता रहा है कि कितने person, कितने places, कितने things, that is known as the adjective of number. For example, there are 11 players in the team. तो आप देख सकते हो players के आगे क्या word है? 11 है। ठीक है, that is the adjective of number. Now the next type of adjectives is demonstrative adjectives. Adjectives that are used to point out nouns are called demonstrative adjectives. मतलब कि वो adjective जो कि हम use करते हैं noun को point out करने के लिए, उसे हम demonstrative adjective बोलते हैं। For example, this car belongs to my uncle. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो word this को। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंगुलर चीज में होती है और कोई पास होती है ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम दिस यूज करते हैं, और वही ऑब्जेक्ट अगर दूर होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है दैट इज, फिर हम उसमें यूज करते हैं डैट। ठीक है, और अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में है और आपके पास है तो आप दीज यूज करोगे। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपसे दूर है तो आप दोज यूज करोगे। सो दिस दैट दीज दोज का यूज हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Adjectives that denote each one of a number are called distributive adjectives. मतलब कि वो adjective जो each one of a number को denote करता है, that is the distributive adjective जो distribute करता है। ठीक है, for example, every student must pay the fee by 20th August. Okay, तो every student, ठीक है, हर एक, यानी कि distribute form में है। Okay, now the next type of adjective is interrogative adjectives.
Adjectives that are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. मतलब कि वो adjective जो हम use करते हैं noun के साथ, ठीक है, और questions वगैरह पूछते हैं, that is known as the interrogative adjective. For example, which dress do you like to wear? Okay, तो dress के आगे हमने लगाया which, that is the interrogative adjective. Okay. Now the next type of adjective is possessive adjectives. Adjectives that are used to show who possesses something are called possessive adjectives. मतलब कि वो adjectives जो कि हम use करते हैं ये दिखाने के लिए कि कौन किसकी ये चीज़ belong की, मतलब कौन है जो इस चीज़ को belong करता है, ठीक है, और ये चीज़ किसको belong करती है. Okay, that is known as the possessive adjective. Okay, for example, that is my umbrella. ये मेरा umbrella है, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया है, माई वर्ड यूज किया गया है अम्ब्रेला से पहले. ओके, नाउ स्टूडेंट इसी के बेसिस में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज some special kinds of adjectives. कुछ और भी special kinds of adjectives है. Besides the kinds of adjectives described above, there are some other kinds of adjectives too. अब इनके अलावा भी कुछ और other kinds of adjectives दिए गए हैं, जैसे कि first आपको यहाँ पर दिया है proper adjectives. Some adjectives are derived from proper noun from the names of geographical places, continents, countries, states, etc. These often describe the origin or source. अब यहाँ पर हमें बताएगी कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो कि ड्राइव करते हैं, जो कि निकलते हैं फ्रॉम द प्रॉपर नाउन ओनली. ओके, एंड फ्रॉम द नेम ऑफ ज्योग्राफिकल प्लेसेस. ये ज्योग्राफिकल प्लेसेस के नाम से निकलते हैं, ठीक है, लाइक कॉन्टिनेंट्स हो गया, कंट्रीज हो गए, स्टेट्स हो गए. ओके, एंड दीज ऑफन डिस्क्राइब द ओरिजिन. ये ओरिजिन डिस्क्राइब करते हैं या फिर सोर्स डिस्क्राइब करते हैं, कहाँ से निकल के आए हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच फूड, ठीक है, तो कौन सा फूड, फ्रेंच फूड. नेक्स्ट वन कश्मीरी शॉल्स, ठीक है, कहाँ से निकल के आए वो शॉल्स, कश्मीर से. ओके, now the next topic is adjectives of number can be further classified in the following ways. जो adjective of number है वो और भी ways में इन्हें describe किया गया है, जैसे कि cardinal numbers और exact number. ठीक है, cardinal number, exact number, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 50 रुपीज, 20 pounds. नेक्स्ट वन ऑर्डिनल नंबर जो कि ऑर्डर और रैंक को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, दैट इज सेकंड पोजीशन, फर्स्ट हाउस. ओके, नेक्स्ट वन इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स do not denote any exact number. जो indefinite adjectives होते हैं वो कोई भी exact number को denote नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि some girls, any idea, तो एकदम ये particular form में नहीं बता रहे हैं. Next one is distributive adjectives, refer to each one of a number taken one at a time. ये refer करता है हर एक, ठीक है, जैसे कि each child, every day. Okay, now the next is emphasizing adjectives. These adjectives are used to emphasize or to show strong feeling. ये type of adjective जो हम use करते हैं emphasize करने के लिए या फिर एक strong feeling को show करने के लिए. My own brother, for example, my own brother, his indomitable spirit, etc. ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ और भी ज्यादा उसे enhance करने के लिए use किया गया emphasize words. ओके, now student, before moving further, here is the point. Did you know? In fact, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब यहाँ पर आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स बताया गया है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम नाउन. एडजेक्टिव्स जो है वो हम नाउन से भी फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको नाउन दिया है और एडजेक्टिव्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज गर्ल, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा गर्लिश. नेक्स्ट वन इज ट्रबल, ट्रबलसम, डेंजर, डेंजरस, एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स फॉर्म फ्रॉम वर्ब्स. अब वो एडजेक्टिव जो कि वर्ब से फॉर्म हुए हैं, जैसे कि एंजॉय, एंजॉयबल, ओके, हेल्प, हेल्पफुल, हेट, hateful, then laugh, laughable. Then next one is adjectives formed from other adjectives. अब वो adjective जो कि दूसरे adjective से form हुए हैं, जैसे कि tree, threesome, green, greenish, easy, easier, funny, funnier. Now the next is adjectives formed from some common suffixes. अब वो adjectives जो कि common suffixes से form हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर suffix y दिया है और आपको word दिया है imagine, ठीक है. तो यहाँ पर जब इसका adjective form होगा तो लास्ट में क्या लग जाएगा, y लग जाएगा, क्योंकि suffix है, suffix मतलब पीछे जो लगता है, ठीक है.
सो एडजेक्टिव होगा इसका इमेजिनरी. नेक्स्ट वन AL नेचर नेचुरल. देन LY अर्थ earthly. देन FUL प्ले playful. देन उसके बाद ORY एडवाइस एडवाइजरी. देन IC आर्टिस्ट आर्टिस्टिक. देन OUS फेम famous. Then ISH brown brownish. Then IV description descriptive. Then EN black blacken. Next one SOME some. Then dark darkness. स्टूडेंट यहाँ पर NESS होगा, सो डार्क डार्कनेस. ओके. नेक्स्ट वन LESS ब्रेन ब्रेनलेस. ओके. नाउ स्टूडेंट इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है जो कि आपको कंप्लीट करना है. Now the next topic is degrees of comparison. So there are 3 degrees of comparison. Total कितने degrees of comparison होता है adjective में? That is 3. Okay. So the first is positive degree, then comparative degree and superlative degree. First है positive degree, then comparative degree है, फिर है superlative degree. So positive degree में आप देख सकते हो word small, comparative में हो जाएगा smaller and superlative में smallest. तो पॉजिटिव में हम किसी से कंपेयर नहीं करते हैं और कंपैरेटिव में हम 2 पर्सन को कंपेयर करते हैं आपस में. और सुपरलेटिव में क्या होता है, एक पर्सन पूरी क्लास से वो कंपेयर हो रहा है. ठीक है. ऐसे ही आपको दिया है ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट. नाउ ऑब्जर्व द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दी गई है. दिस इज अ स्मॉल प्लांट. दिस प्लांट इज स्मॉलर देन द अदर. ठीक है, दूसरे से थोड़ा सा स्मॉलर था. नेक्स्ट वन दिस इज द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑफ ऑल. और ये सबसे छोटा प्लांट है. ठीक है. द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड. पॉजिटिव डिग्री को हमने यूज किया है जब हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्मॉल प्लांट. यहाँ पर हमने कोई कंपैरिजन नहीं किया है. हियर द प्लांट इज नॉट बीइंग कंपेयर्ड विद एनी अदर प्लांट. यहाँ पर प्लांट जो है वो कोई भी दूसरे प्लांट के साथ कंपेयर नहीं किया गया है. नेक्स्ट थिंग इज the comparative degree is used to compare 2 things or 2 group of things. जो comparative degree है वो यूज हम करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सके 2 चीजों को या 2 group of things को हम कंपेयर कर सके. जैसे कि this plant is smaller than the other. Okay, so here 2 plants are being compared with each other. यहाँ पर 2 प्लांट एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहे हैं. So we have used the comparative degree. तो हमने यहाँ पर comparative degree यूज किया है. Next one is this plant is the smallest of all. So here more than 2 plants are being compared. यहाँ पर 2 प्लांट से ज्यादा प्लांट्स को कंपेयर किया जा रहा है. So we have used the superlative degree. तो यहाँ पर हमने superlative degree को यूज किया है. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल में पॉजिटिव डिग्री नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं. फॉर एग्जांपल राज इज अ टॉल बॉय, दैट इज द पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट वन कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीजों के बीच में 2 चीजों या 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मानस इज टॉलर देन राज. सो हियर कंपैरेटिव डिग्री इज देयर. नाउ नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 थिंग्स, 2 चीजों से ज्यादा के बेस में कंपैरिजन. ठीक है. फॉर एग्जांपल सुशील इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल. तो टॉलेस्ट जो आपका सुपरलेटिव डिग्री है. ठीक है. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट्स टेक केयर. बाय बाय.